جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمل بالخیر، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے انشاءاللہ کہ ہاؤ ٹو میک یور لائف ایزی اینڈ ہیپی، کہ اپنی زندگی کو آسان اور خوشگوار آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں۔ آسانی ہر کسی کو اپنی زندگی میں چاہیے ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس سے پہلے خود سے یہ کوشچن پوچھنا پڑے گا کہ کیا چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری زندگی کو ہے مشکل بنا دیا ہے۔ کس نے ہماری چیز کو کیا ہماری مشکلاتیں ہیں، جب ہم ہر کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی ہے، جو میری مشکلاتیں ہیں وہ کسی اور کی نہیں ہوگی، کوئی اور کسی مشکل میں مبتلا ہے تو تیسرے بندے کی کوئی اور مشکلات ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز پہ غور و فکر کرنا ہے کہ ہماری مشکلیں کیا ہیں، اور کس چیز سے جو ہے ہماری زندگی کیا ہو گئی ہے، تنگ ہو گئی ہے یا پھر مشکل ہو گئی ہے، اور کس چیز سے ہم لوگ پریشان ہیں، کس چیز سے سیڈ ہیں، ہم کو یہ سب چیزیں پتہ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، پیسہ ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا، کوئی اچھے سے بات نہیں کر رہا ہے، یا آپسی اختلافات بھی ہیں، جاب ہے، ٹھیک ہے، اور کئی تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کسی کا ڈیورس ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہم کو کیا کرتی ہیں، سیڈ کرتی ہیں، ڈپریس کرتی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں تو ان سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ اب زندگی بچی ہی نہیں ہے، ایک زندگی بچی ہی نہیں ہے۔ تو اس کا ہم پہلا اگزامپل لیتے ہیں، یہاں پر یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 97 ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے دل تمہارا دل تنگ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ اب کوئی جو ہے بہن ہے، اس کے ساتھ کسی نے غلط کر دیا ہے، تو کوئی بہن نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے، تو وہ کیا سوچتی ہے کہ میں کس کو بتاؤں؟ تو پتہ ہے ہم سب سے پہلی غلطی یہیں پر ہی کرتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں اور اپنا کیا ڈھونڈتے ہیں، ہم درد ڈھونڈتے ہیں کہ میں جا کر دوسرے کو بتاؤں گی۔ اور ہمیں کیا چاہیے نا، ہم انسان ہیں، ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے، ہمیں کمفرٹ چاہیے ہوتا ہے دوسرے انسان سے، کہ دیکھو میری زندگی میں یہ پرابلم ہے اور اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اور وہ لڑکی تیسری لڑکی کو بتائے گی، پھر چوتھی لڑکی کو بتائے گی، تو اس سے کیا ہوتا ہے نا کہ اس سے آپ کی پریشانیاں اور بڑھتی ہیں۔ آپ کا کیا ہو گیا اس کے اندر کہ آپ ایک ایسی سچویشن میں تھے، ایموشنز آپ کے اتنے زیادہ ہائی تھے، اور مطلب آپ مان لیجیے ٹوٹ چکے ہیں، کسی کی کوئی حرکت سے آپ پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں یا بکھر چکے ہیں۔ اب اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مان لیے کسی لڑکی نے کسی سے بدتمیزی کی ہو، کسی کا ڈائیورس ہو چکا ہو، اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ ٹوٹ چکا ہو۔ دوسری چیز کیا ہو گئی ہے کہ کسی نے مان لیجیے جس کو جاب نہیں ملی ہے تو اس کو بہت برا بول کر وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل دکھتا ہے اس سے جو وہ بولتے ہیں۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بول رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، جب جب اللہ بول رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، تو ہم پہلی غلطی کہاں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو بتانے چلے جاتے ہیں، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ زندگی کی مشکلاتیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ابھی تک میرا غم صرف میرا خدا جان رہا تھا، اب میں دوسرے تیسرے انسان کو لے کر آئی ہوں۔ اب کیا ہوگا کہ میں اس غم میں مبتلا ہوں، تو میں پہلے سے ہی پریشان ہوں، لیکن ان تین لوگوں کو میں نے بتا دیا۔ اب بتا دی مطلب ایک مان لیجئے کہ ان تین لوگوں سے بھی میری لڑائی ہو گئی، تو کل کو وہ جو میں نے اپنی بات انہیں بتائی تھی، تو وہ کیا کریں گے، مجھے ہیوملیٹ کریں گے، ارے یاد ہے تمہارے ساتھ تو ایسا ہوا تھا۔ اور یہ چیز ہوتی ہے، لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ کی جاب چھوٹ گئی ہے، آپ کو وہاں سے بہت برا کہہ کر نکالا گیا ہے، آپ کہیں اور جائیں گے، آپ نے لوگوں سے بتایا، تو پیٹھ پیچھے ہی وہ لوگ کیا بولیں گے، ارے اس کو تو وہاں سے نکالا گیا تھا۔ تو سب سے بڑی غلطی ہم یہی کرتے ہیں کہ جب میرا رب بول رہا ہے، کون ہے وہ، میرا رب ہے، سوچئے کہ وہ بول رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارا دل دکھ رہا ہے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے رویوں سے میں جانتا ہوں، تو کیوں ضرورت ہے کسی اور کو بتانے کی؟ پہلے سے ہی دکھی تھا میرا دل کہ کسی نے میرا دل دکھا دیا، تین لوگوں کو اور بتا کر 1 سال بعد پھر سے میں نے اپنی پریشانی بڑھا لی۔ تو کیا ہے نا، ہم سیٹسفائی نہیں ہو پاتے ہیں جب تک ہم کسی انسان کو نہیں بتاتے، اور یہ سیٹسفیکشن ہم کو کیسے ملے گا؟ اب یہی ہو گیا نا، یہ ایک پریشانی ہے
کہ کوئی ہمارے بارے میں بولتا ہے یا ہم کسی کو بتانا ہے، تو یہ پریشانی ہے کہ میں کسی سے بتا نہیں پاتی ہوں یا میں کچھ بول نہیں پاتی ہوں کسی سے، اور یا پھر میں نے اس کو بتایا تھا، اب اس نے مجھے واپس سے ہیوملیٹ کر دیا۔ تو ہمیں کیا رہنا ہے؟ سب سے پہلے سیٹسفائیڈ رہنا ہے۔ کس چیز سے سیٹسفائیڈ رہنا ہے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے بندے، میں جانتا ہوں کہ تیرے دل پر کیا بیتتی ہے، مجھے پتا ہے کہ تجھے کیا بولا گیا، مجھے پتا ہے تیرے ماں باپ کے لیے کسی نے کیسے الفاظ یوز کیے، مجھے پتا ہے کہ تیری پرورش پر جو ہے وہ انگلی اٹھائی گئی۔ اللہ جانتا ہے۔ تو ہمیں کیا رہنا ہے؟ سیٹسفائیڈ رہنا ہے۔ ہم بولتے ہیں کہ مجھے میرا رب جانتا ہے، مجھے میرا رب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود 10 لوگوں کو اپنی صفائی دیتے پھرتے ہیں، ہے نا؟ دیتے ہیں نا صفائی ہم لوگ۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نہیں، ارے اس کو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اس کو تو پتا ہونا چاہیے نا، میں ٹھیک تھی، میں اچھی تھی، ہے نا؟ یہ ہم کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں سیٹسفائیڈ ہونا ہے کیا؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتے ہیں۔ میری زندگی میں کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، ہاں آپ شیئر کیجئے، لیکن کس سے شیئر کریں گے؟ اب یہ ہے نا، کس سے شیئر کریں گے؟ تو اٹھائیے قرآن، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اٹھائیے قرآن اور دیکھیے کہ جو ڈپریشن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ دی ہیں، یا پھر دل ٹوٹنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سی آیتیں ہیں۔ اور آپ جب گوگل کریں گے نا، تو اتنا سارا لسٹ آتی ہے اس کے لیے، اور جب آپ اسے پڑھیں گے نا، تو اللہ، قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے بہن۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ ہم کس طریقے سے پریشانی ہم نے کھڑی کی دوسروں کو بتا کر، دوسروں سے بتانا ہی نہیں ہے، ہمیں کیا ہونا ہے کہ سیٹسفائیڈ رہنا ہے چیزیں کے لیے۔ دوسری بات کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ نا بہت زیادہ اینکشیس ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ اینکشیس ہو جائیں گے، اینزائٹی ہونا اور اسٹریسفل ہونا، اینزائٹی، اسٹریسفل ہونا اور وری کرنا، یعنی کہ چنتا ہونا کسی چیز کی، یا کسی چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچنا۔ اور اینزائٹی کیا ہوتی ہے نا؟ گھبراہٹ ہوتی ہے، کوئی بھی چیز ہو جائے یا ہونے سے پہلے والی گھبراہٹ ہونا، تو وہ نارمل چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ بالکل نارمل چیز ہے، اور یہ انسان ہونے کا ایک پارٹ ہے، یعنی کہ اگر آپ انسان ہیں تو یہ چیزیں ہوں گی آپ کو۔ انسان گھبراتا ہے، انسان کو بنایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا۔ اگر انسان نہیں گھبرائے گا، تو آپ بتائیے کہ یہاں ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں کیسا لگے گا کہ ہم دوزخ میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے؟ تو پھر ہم تو گھبرائیں گے ہی نہیں جہنم میں جانے سے۔ تو اللہ نے یہ چیز ہمارے اندر ڈالی ہے، انزائٹی ڈالی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نارمل چیز ہے بالکل، لیکن اس کو کیا کریں نا کہ کچھ ٹائم کے لیے ہی وہ کر دیں۔ تو دوسری آیت ہے سورہ الکہف کی، سورہ الکہف کی یہ آیت ہے، اور کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 6۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے تمہارے اتنا زیادہ گریو کرنے سے، تمہارا اتنا زیادہ، میں شاید بھول گئی ہوں یہاں پر ڈالنا، یا پھر آئی تھنک آرڈر ادھر ادھر ہو گیا ہوگا، لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے کہ پھر شاید آپ ان کے بعد غم میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالیں گے، اور اگر وہ اس گفتگو پر یقین نہیں رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈو ناٹ گریو، اتنا زیادہ خود کو اینکشیس نہ کر لیں کہ یہ آپ کی جان پر بنائے، کیا؟ آپ کی جان پر بنائے، یعنی کہ یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ آپ کی جان بھی لے سکتی ہے۔ اور آج دیکھیے ڈاکٹر کیا بولتے ہیں، ارے اس کو اینزائٹی ہے، اس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم آ رہی ہے۔ اینزائٹی سے ہیلتھ پرابلم آتے ہیں، اینزائٹی اور ڈپریشن سے میں نے خود فیل کیا ہے کہ نہ میرا ڈائجیشن صحیح رہتا تھا، کچھ بھی صحیح نہیں رہتا ہے، آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو پیر کانپتے ہیں، آپ کچھ کھاتے ہیں نا تو کچھ لگتا ہی نہیں ہے، سب ویٹ لاس میں چلا جاتا ہے، نہ کھانا صحیح سے لگتا ہے نہ کچھ۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں نا، اس قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر آج بولتا ہے کہ ڈپریشن لیڈنگ کاز ہے ڈیتھ کا، یا اینزائٹی لیڈنگ کاز ہے ڈیتھ کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے ہیں کہ اتنا بھی جو ہے آپ غم میں نہ پڑیں کہ آپ کی جان خطرے میں ڈال دیں۔ تو
जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं कि ये चीज़ ऐसी है, इतनी खतरनाक है, आज हम बोलेंगे कि नहीं डिप्रेशन बहुत बुरी चीज़ है। अरे हमको तो पता है, हमारे अल्लाह ने तो कब से हमें बता रखा है ना, कब से हमें बता रखा है। इसका जो अरेबिक तर्जुमा है, अरेबिक में यहाँ मैंने डाला नहीं है, वो है फलअल्लका बाखिउन। तो ये जो बाखिउन यूज़ हुआ है ना यहाँ पर, बाखी यहाँ पर किस चीज़ के लिए होता है? टू डाई बिकॉज़ ऑफ ग्रीव, यानी कि दुःख से मौत हो जाना। और यहाँ पर ये बाकी जो होता है ना, ये मौत के लिए नहीं आता है। यहाँ ये वाली मौत नहीं, सुसाइडल मौत नहीं है। हालाँकि लोग जो होते हैं एंग्ज़ायटी से मरते नहीं हैं, डिप्रेशन में लोग सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ये बाकी उन जो वर्ड है, ये सुसाइडल मौत के लिए नहीं है। ये क्या होता है? खात्मा हो जाने वाला है। अब खात्मा, आपकी रूह का खात्मा भी हो जाता है। देखा है ना, जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनके पास कोई इच्छा ही नहीं होती है, उनको कोई ख्वाहिश नहीं होती है जीने की। उनको उनको लगता है कि बस दुनिया है और जिए जा रहे हैं, सब कुछ ऐसे ही चला जा रहा है। तो ये वो वाली मौत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बोला है कि फला अल्लाह का बाखियुन नफ्स का, यानी कि अपने ऊपर अपनी नफ्स पर इस चीज को इतना भी ना हावी कर लो कि आप जो है, आप क्या हो जाए, मौत के खतरे में चले जाएं। और ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कब फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग यकीन नहीं कर रहे थे उन पर, जब लोग ईमान नहीं लेकर आ रहे थे उन पर, उनकी उनका जो डिप्रेशन था, उनकी जो एंजाइटी थी, वो किस चीज को लेकर थी? देखो बहनों, के लोग ईमान नहीं ला रहे हैं, वो इसलिए एंजाइटी थी उनको। और हमारी एंजाइटी पैसा, लग्जरी, कार, एग्जाम्स, ये सब कुछ। लेकिन फिर भी मेरा अल्लाह क्या बोलता है कि नहीं, डू नॉट वरी, परेशान मत हो। और यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज मैं बोलूंगी, जो शायद हमारी अम्माएं घर में करती हैं, या फिर जो हमारी आपा होती हैं, या जो भी लोग हैं जो अपनी बच्चियों को, अगर बच्चियों को डिप्रेशन होता है या एंजाइटी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं ये हमेशा बोलती हूँ, प्लीज मॉक ना करें उन्हें। अगर एक बच्चा आपके सामने अपना दिल खोल कर रख रहा है ना कि अम्मा मुझे ये परेशानी है, सुने, और 2 दिन बाद उसको उसी का ताना ना दें, है ना? तो क्या हुआ कि एंजाइटी थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि इस चीज को छोड़ दें, क्योंकि लोग ईमान नहीं लेकर आ रहे हैं, वो आपके ऊपर नहीं है। तो यहाँ अल्लाह ताला ने हमें क्या करा है, यहाँ अल्लाह ताला ने हमको रिलैक्स किया। पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, तो मेरी जिंदगी में जो परेशानी है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। और जब वो जानते हैं, तो मुझे क्या हो जाएगा, आई विल बिकम ईज, क्या हो जाएगा कि मैं सुकून परस्त हो जाऊँगी। मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा खुदा जानता है। ठीक? फिर दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा कि नहीं करो, इतना ज़्यादा नहीं करो, ये तुमको बाक़िउन की तरफ ले जाएगा। यानी कि आप मर सकते हो इस चीज़ से, मौत का खतरा है इस चीज़ से। और वो मौत कैसी होगी कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे, इतना किसी चीज़ को सोचना नहीं है। तो अल्लाह ने बोला कि पहला तो मैं जानता हूँ सब कुछ, तो तुम्हें ये यकीन होना चाहिए, तुम सैटिस्फाइड होने चाहिए, जो भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी है, जो भी हार्डशिप है, वो मैं जानता हूँ। दूसरा क्या है कि इतना मत उस चीज़ में मुब्तला हो। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोल रहे हैं, तो अल्लाह की कमांड है, हमें माननी है। अल्लाह ने कमांड किया, हमें मानना है, और हमें क्या करना है, उस चीज़ को फ़ॉलो करना है कि हाँ, मेरे अल्लाह ने कहा है कि मैं एक चीज़ में इतना ज़्यादा खुद को मसरूफ़ नहीं कर सकता कि मैं मौत की तरफ चली जाऊँ, है ना? तो दूसरी चीज़ हमको क्या करनी है कि हम बिल्कुल भी उस चीज़ में मुब्तला नहीं होंगे, इंशाअल्लाह। अब उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी आयतें हैं, मैंने सिर्फ़ 4 से 5 ली हैं, मैं दिन भर लिख रही थी। इतनी आयतों में आप लोगों को, हम लोगों को कम्फ़र्ट कराने की कोशिश की है ना, इतनी कम्फ़र्ट कराने की कोशिश की है। और यहाँ देखिएगा बहनों कि यहाँ मेरे अल्लाह ने ना ये नहीं बोला है कि अरे तुम तो इतने पायस इंसान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते ना कि तुम तो इतने पायस इंसान हो, तुम क्यों एंग्ज़ायटी में के शिकार हो गए? तुम क्यों डिप्रेशन के शिकार हो गए? तुम तो नबी हो। नहीं, क्योंकि ये चीज़ नॉर्मल है। एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन नॉर्मल है। ज़िंदगी में हमें लगता है ना कि अरे तुम्हारे लिए ये क्या चीज़ है, ये हार्ड थोड़ी है। उस इंसान की उतनी कैपेसिटी है।
اس کا ہارڈ وہی ہے. ایک انسان 2 سیڑھیاں چلتا ہے، جب بچہ ہوتا ہے نا وہ 2 سیڑھیاں چلتا ہے، اس کے لیے وہی ہارڈ ہے. اور ہم 100 سیڑھیاں چڑھ جائیں گے، ہمارے لیے وہ ہارڈ نہیں ہے، کیونکہ ہماری کیپیسٹی ویسی ہے. تو ہم دوسرے کی پرابلم دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ارے وہ تو بہت آسانی. نہیں ہو سکتا ہے اس کی کیپیسٹی نہ ہو اتنی. تو اللہ نے یہاں پر نا کسی کو بھی یہ نہیں بولا ہے کہ تم تو اتنے پائس ہو. چلیے میں آگے بڑھتی ہوں انشاءاللہ. تو اب یہ کون سی سورہ ہے؟ سورہ القصاص کی ورس نمبر 13 ہے. اس میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولا پھر ہم نے، یہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم نے اسے اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی ماں کو تسلی ہو اور غم نہ کرو، اور وہ جان سکتی ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو یہ اگر یہ بات کوئی مجھے آ کر اپنی پریشانی بتاتا ہے اور میں کہتی ہوں اس سے، کیا کہتی ہوں کہ تم تسلی رکھو، میں اگر اس سے بول دوں گی نا تو وہ انسان ایک دم شانت ہو جائے گا. تم تسلی رکھو، میں بول رہی ہوں نا تم سے کہ ساری چیزیں میں سنبھال لوں گی، میں سب کچھ کر لوں گی، پریشان مت ہو، بھروسہ رکھو. اگر میں نے کسی کو اتنا سا ورڈ بول دیا تو وہ انسان مرتے مرتے جی اٹھے گا. لیکن یہاں میرا رب بول رہا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس جب لوٹا دیا تھا تاکہ اس کی ماں کو تسلی ہو جائے. میرے رب نے کوئی کیا کر رہے، کسی کی زندگی میں مشکلات آ رہی ہیں، کوئی انسان پریشان ہے تو وہ تسلی دے رہا ہے، وہ تسلی دے رہا ہے اور بول رہا ہے کہ غم نہ کرو. اور وہ جان سکتی ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی کہ میں جیسے بولتے ہیں نا آپ پرومس کیجئے، ڈیل کیجئے، آپ یہ بات کب کریں گی، یا بولتے ہیں لوگ ریٹن میں لے لیتے ہیں، تو یہ تو ریٹن ہی ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریٹن ہے قرآن. اس کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. جب ہمیں کسی پر یقین نہیں ہوتا ہے نا کہ آپ کل میرا یہ کام کرا دیں گے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ریٹرن میں لے لیجئے، مہر لگا دیجئے، اس پر ڈیٹ ڈال دیجئے، دونوں کے سائن لے لیجئے، سگنیچر کر دیجئے. تو یہاں تو میرے رب کی مہر لگی ہوئی ہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. وہ کیا بول رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کو، کہ اسی کی عبادت میں دلوں کا سکون ہے. پھر پھر آگے جو سورہ مریم کی یہ آیت ہے، اس کے اندر دیکھیے سورہ مریم میں نا جو مریم علیہ السلام تھی، ان کو نا بہت بہت لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی تھی. ان کو پتہ نہیں کیا کیا بولا تھا. حمل سے تھی، حاملہ عورت تھی وہ، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی کمیونٹی چھوڑی، وہ اکیلی تھی، بچے کے ساتھ تھی. ہم پر وہ چیزیں نہیں گزرتی ہیں. وی آر لیونگ اے ویری کیسی لائف، بہت زیادہ ایزی لائف ہم لوگ جی رہے ہیں، پھر بھی ہم کو اسٹریس ہے اس لائف میں، ٹھیک ہے. بچے کے ساتھ فار ایگزامپل مان لیجیے اگر میں ہی ہوں، میں حاملہ ہو جاتی ہوں اور پھر کوئی مجھے نکال دے، جو مجھ پر بیتے گی مجھے نہیں لگتا کوئی اور انسان سمجھ بھی سکتا ہے. ان کو نہیں پتا تھا کیسے ایک بچہ جننا ہے، ان کو نہیں آتا تھا کچھ، ان کا کوئی وہ بھی نہیں تھا کہ جو خیال رکھ سکے، کوئی نہیں تھا. کمیونٹی چھوڑ دی، اکیلی تھی. تو میرے رب نے کیا بولا؟ میرے رب نے بولا کہ غم نہ کر اے مریم، غم نہ کر، میں ہوں تیرے ساتھ. اور پھر ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. پھر اس کے نیچے سے ایک نے پکارا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے کہ تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک ندی جاری کر دی ہے. پانی، کھجور، اتنی ساری چیزیں، نان سیزنل فروٹ تک آتے تھے ان کے لیے، اور فرشتے ان کے لیے فروٹس لے کر آتے تھے. جب آپ کا کوئی نہیں ہے تو آپ کا اللہ ہے. پتہ ہے یہ نا یہاں پر آ کر لگتا ہے کہ صرف اللہ اللہ لوگ بولتے ہیں، لوگوں کے نا دلوں میں یہ چیزیں نہیں اتر پاتی ہیں کہ ہاں اللہ. لیکن سچ میں یقین ماننا اپنی زندگی کا ایک جو ہے، ابھی اگر ٹائم ہوا تو وہ چیز میں ضرور شیئر کروں گی. ہم لوگ کو نا یقین ہی نہیں ہے اپنے اللہ پہ، بالکل سے یقین کرنا ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. ہم کہتے ہیں پریکٹیکل ہو جاؤ زندگی میں، پریکٹیکل ہو جاؤ. کیا ہوگا، لاجیکل بات ہی نہیں کرتے ہیں. کوئی انسان بولتا ہے کہ ارے وہ دیے جا رہا ہے، کسی کو کھانا دیے جا رہا ہے، اپنے لیے بھی تو بچا کر رکھنا ہے نا. اپنے لیے بھی تو بچا کر، اگر وہ کسی کو 4 پلیٹ کھانا دے رہا ہے تو وہ 4 پلیٹ اس کے لیے بنی ہی نہیں تھی. جب سے وہ چاول اگا، جب وہ چاول بن رہا تھا، جب وہ چاول پک رہا تھا، وہ اس کے نصیب کا تھا ہی نہیں. تو میں نے تو دیا ہی نہیں نا اس انسان کو. یعنی کہ میں جیسے اگر مان لیجیے بریانی بناتی ہوں، اس میں 4 پلیٹ کسی کو دے دیتی ہوں اور لوگ مجھے کہتے ہیں تم نے تو اپنے لیے چھوڑا ہی نہیں ہے کچھ بھی، تو وہ میرا تھا ہی نہیں.
लेकिन हाँ, मैंने लास्ट वाले बयान में बोला था ना कि जब कोई गरीब आपसे माँगने आता है तो वो आपके गुनाह माफ़ करवाने आ रहा होता है। और जब इस तरीके से सोचेंगे ना कि वो आपके गुनाह माफ़ करवाने आया है, तो आप इतना देंगे उसे, इतना देंगे कि आप भूल जाएँगे कि कोई लिमिट भी होती है। लेकिन हम में क्या होता है ना, इस्तिग़ना हो जाते हैं हम लोग। इस चीज़ के बारे में भी आगे बात करती हूँ। पैसे के बारे में, जब पैसे की प्रॉब्लम आएगी, तो क्या होगा कि मतलब हम लोग क्या करते, वो नहीं है, 4 प्लेट जो बनी थी, वो मेरे लिए नहीं बनी। मेरे लिए अगर उसके अंदर सिर्फ़ 2 चम्मच हैं, तो जब वो दाना उगा भी था ना, तो अल्लाह ने उस पूरे दाने में, उस 10 किलो के चावल के बोरे में सिर्फ़ 2 चम्मच मेरे लिए लिखे थे। उसमें मैंने कुछ सैक्रिफ़ाइस नहीं किया है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हान पता है, यहाँ एक ये जो चीज़ें हैं, ये जो आयतें हैं, इतनी सारी जो मैंने आयतें उठाई हैं, ये पता है क्या है? ये इसलिए मैंने उठाई हैं यहाँ पर, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ना मॉक नहीं करता है आपको, वो इंसल्ट नहीं करता है, वो आपको ह्यूमिलिएट नहीं करता है। वो मरियम से ये नहीं, उन्होंने मरियम से ये नहीं कहा कि मरियम, आप तो क्यों तुम वरी कर रही हो? तुम तो बहुत पाकीज़ा इंसान हो, तुमको तो वरी नहीं करना चाहिए, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हें क्यों परेशानी है? तुम तो इतनी पायस इंसान हो, तुम तो नबी को पाल रही हो, तो तुम क्यों परेशान हो? अल्लाह ने ये नहीं कहा, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये मेरा बंदा है, मैंने इसको ऐसे डिज़ाइन किया है, इसका दिमाग मैंने ऐसे डिज़ाइन किया है कि वो परेशान होगा। और उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? उसको ज़रूरत है कम्फ़र्ट की। उसको ज़रूरत है कि कोई उसे तसल्ली दे। तो मेरे खुदा ने यहाँ पर तसल्ली दी है। सोचिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी है, मरियम अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी है, मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी अम्मा को लौटाकर बोला कि उसकी अम्मा को तसल्ली हो जाए। याकूब अलैहिस्सलाम को लौटाया, है ना? यूसुफ अलैहिस्सलाम को, याकूब अलैहिस्सलाम को लौटाया। तो मेरा रब तो क्या कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आसानी ही कर रहा है, और जब आप परेशान हो रहे हो ना, तो वो तसल्ली भी दे रहा है। ठीक है, अच्छा, ये वाला टेस्ट अगर आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आई एम देयर, गम ना करो। तो समझ आ रहा है ना कि ज़िंदगी जब मुझको लग रही है कि ऐसी है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, तो मैं ये आयतें पढूँ। उसमें कोई भी मेरी परेशानी आ गई, हर किसी की मुख्तलिफ परेशानियाँ होती हैं, किसी की पैसे की हो गई, किसी की कुछ भी हो गई। लेकिन ये जो आयतें हैं, ये हर चीज़ के लिए हैं, हर चीज़ के लिए। कोई भी आपकी ज़िंदगी में परेशानी हो, मेरा अल्लाह जानता है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरा अल्लाह जानता है। मैं अगर परेशान हो रही हूँ, तो अल्लाह ने बोला कि इतना ज़्यादा परेशान ना हो, तो मैं वहाँ रुक जाऊँगी। फिर उसके बाद मेरे अल्लाह ने क्या किया, मुझे कम्फ़र्ट किया है। और क्या, मरियम अलैहिस्सलाम को ऐसी जगह से अता फरमाया, अगर मुझसे कुछ छिन गया है, तो मुझे अता भी हो जाएगा। तो ये आयतें क्या देती हैं, कुरान क्या देता है, सुकून देता है आपको। आपकी ज़िंदगी, जो आप परेशानी थे, उसको आसान कर देता है। कैसे आसान कर देगा? जब आप पढ़ेंगे उसको, जब आप समझेंगे उसको। अरेबिक सूरह कहफ जो है, आज बहुत लोगों ने पढ़ी होगी सूरह कहफ ना, लेकिन अरबी में पढ़ा। उस अरबी में क्या है? क्या उसके मायने हैं? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है उस चीज़ से? वो तो किसी को पता ही नहीं। इसलिए मायने, तफ़सीर और तर्जुमा पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि जो मेरा अल्लाह बोल रहा है, वो तो हम जान ही नहीं रहे ना, बस हम पढ़ते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसीलिए जानना और समझना ज़रूरी है, तभी तो आप अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को लेकर आएँगे। और अल्लाह क्या करता है, राहत का वादा कर रहा है। किससे? नबियों से राहत का वादा, नबियों की अम्मा से राहत का वादा, है ना? ये नहीं बोल रहे कि एंजाइटी क्यों कर रहे हो, क्यों डिप्रेशन में जा रहे हो, नहीं, नहीं, ये बोला ही नहीं, राहत दे रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, कोई आ जाए, अरे आजकल तो सब डिप्रेशन का ही शिकार होते हैं। हो सकता है वो इंसान ऐसी बैटल लड़ रहा हो, तो यू हैव टू बी सॉफ्ट। हर किसी से आपको ना, मैं नहीं थी ऐसी सच में, मतलब मुझे खुद को लगता है कि मैं, जो मेरी ज़ुबान थी वो बहुत ज़्यादा तल्ख़ थी या क्या थी, और जब मैं ये चीज़ें सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने शायद बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ा है अपनी ज़ुबान से। आई वाज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बार एक लड़की ने मुझे बोला भी था कि अदीबा, यू आर माय फ्रेंड। मैंने कहा, नो, यू आर माय क्लासमेट, आई एम नॉट योर फ्रेंड, नॉट एवरीवन कैन बी माय फ्रेंड। आई वाज़ लाइक दिस पहले। मैं इस तरीके से बात करती थी। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ कि हो सकता है मैंने अपनी इस बात से, ठीक है, मैं नहीं मानती थी दोस्त, या मुझे उससे ना वो शायद फ़ील नहीं होता था उतना ज़्यादा कि हाँ, ये शी कैन बी माय फ्रेंड वाला। लेकिन जब मैं वो बात याद करती हूँ ना आज भी, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आई हर्ट हर।
तल्ख़ लहज़ा जो होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। और पता है, जब अब मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि कोई अगर मुझसे तल्ख़ लहज़े में बात कर देता है ना, आई स्टार्टेड क्राइंग। तो या तो ये अल्लाह का तरीका था मुझे दिखाने का कि देखो तुम इस तरीके से बात करती थी, एंड नाउ आई मेड यू सॉफ्ट। तो अभी तुमको पता चलेगा कि जिस तरीके से तुमने पहले बात की थी लोगों से, तो वो कैसा किस तरीके से होता था। तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं किस किस तरीके से बात करती थी। मैंने सीधे मुंह बात नहीं की है किसी से। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे ये दिया, कुरान दिया, ठीक है? कुरान दिया, चीज़ें दी, फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस, उस जिस टाइम मुझे अल्हम्दुलिल्लाह क्लासेस मिली हैं, उस टाइम मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी ना इस क्लास की, इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी इस क्लास की कि मैं सुनते-सुनते सो जाती थी। इतना मुझे रिलीफ़ होता था। मेरी एक दोस्त है सदफ, मैं इतना इतना मैं तकलीफ़ में थी ना उन दिनों, इतना ज़्यादा मैं तकलीफ़ में थी कि मेरी दोस्त थी, मैं बोलती थी मुझे सिर्फ़ कोई हदीस सुनाओ, और मैं हदीस सुनते-सुनते सो जाती थी। और वो जो कम्फ़र्ट है ना, जो जो कुरान में कम्फ़र्ट है, जो हदीस में कम्फ़र्ट है, वो कोई इंसान अगर आपको लोरी भी सुना रहा है ना फ़ोन पर, वो नहीं मिलेगा। क्योंकि जो कम्फ़र्ट मेरे अल्लाह के लफ्ज़ों से मिलेगा ना, उसने मुझको बनाया है, उसे पता है कि मेरे अंदर कहाँ क्या कमी है, और मेरी कौन-सी चीज़, अल्लाह की कौन-सी बात मेरे दिल के किस एरिया को छुएगी, और मेरे किस दिल के पार्ट को उसकी उस आयत की ज़रूरत है। सिर्फ़ वो जानता है ना, क्योंकि उसने खुद बोला है कि मैं जानता हूँ, है ना? तो सिर्फ़, और शायद मैं भी किसी के सामने बैठ जाऊँ या किसी की काउंसलिंग करूँ बैठकर ना, तो मैं भी अगले बंदे का नहीं समझ सकती हूँ कि उसका क्या है, लेकिन सिर्फ़ अल्लाह समझ सकता है। अल्लाह ने उस इंसान को बनाया, अल्लाह जानता है कि उसके दिल के कितने कोने और कितने ज़ख्मी हैं और कितने नासूर बन गए हैं। और किसी का जैसे बेटा चला गया है, कितना लोग कितनी तंग उसमें जीते हैं ना कि मेरा बेटा चला गया, मेरा बेटा मर गया, ये सब परेशानियाँ ही तो है ना। हम क्या करते हैं ना, इतना ज़्यादा कोसते-पीटते हैं, सब कुछ करते हैं। हमको आसान करनी है चीज़ें, कैसे आसान होगा? मेरे रब को सुन के आसान होंगी चीज़ें। जब जब उसकी बातें सुनेंगे ना, वो बोल रहा है कि हाँ, अदीबा मैं जानता हूँ। जब जब मैं ये आयत पढ़ रही थी ना, तो मेरी आवाज़ हमेशा ये अब नम होने लगती है, क्योंकि आई फ़ील इतना ज़्यादा, मैं इन आयतों को फ़ील करने लग जाती हूँ कि मुझे लगता है मेरा रब मुझी से बोल रहा है कि अदीबा मैं जानता हूँ सारी चीज़ें। मुझे पता है कि क्या हुआ है, मुझे पता है कि किन चीज़ों से तुम गुज़री हो, मतलब हर चीज़। और यहाँ पर बैठी जितनी भी बहनें हैं मेरी, या जितने लोग यहाँ पर आए हैं, तो अगर उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ हुई है और अल्लाह उनसे कह रहा है कि मैं जान रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या, और खुद को इतना ज़्यादा मत ढालो, दुःख में इतना ज़्यादा मत ढालो कि तुम जो है क्या हो जाओ, बाख़यून हो जाए। बाक़यून यानी कि डू नॉट डाई बिकॉज़ ऑफ ग्रीफ। दुःख में इतना वो मत करो कि तुम मर जाओ। मर जाओ का मतलब क्या है कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ और तुम्हारे अंदर जीने की चाह ही ना रहे। तो अल्लाह डिप्रेशन से भी मुझे रोक रहा है। अल्लाह बोल रहा है कि मैं जानता हूँ। फिर अल्लाह ये भी बोल रहा है कि मैं तुमको कम्फर्ट करूँगा, मैं प्रोवाइड करूँगा। तो मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे नहीं है किसी भी चीज़ की ज़रूरत। मुझे जिसको ज मुझ मैं नहीं बोलूँगी किसी से भी कि देखो ये हुआ था, 2 लड़कियों की लड़ाई हुई तो उसके अंदर मैं सही थी या ये गलत था। मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बोल दिया कि मैं जानता हूँ। अब इसी तरीके से घर में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई भी आप परेशानी फ़ेस करते हैं, तो क्या होता है कि हम बोलते हैं कि नहीं ऐसा है, इसने मुझे बोला था, उसने मुझे बोला था। मुझे तो पता चल गया मेरा अल्लाह जानता है, बस मैं बताऊँगी नहीं अब किसी को, क्योंकि वो ह्यूमिलिएट नहीं करेगा मुझे कल के दिन। वो ये नहीं कहेगा कि हाँ, देखो तुम तो उस दिन रोई थी ना मेरे पास आकर सजदों में, वो नहीं बोलेगा ये चीज़। वो दुनिया बोलती है ऐसा। दुनिया का तरीका होता है कि आज कुछ और होता है और कल कुछ और हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम्फर्ट जो है वो कहाँ से आता है? कम्फर्ट सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आता है। सुकून सिर्फ़ अल्लाह की तरफ से है। तो जब हमें ईज़ चाहिए ना, जब हमें आसानी चाहिए, जब हमें सुकून है ना सबसे बड़ी चीज़। पैसा नहीं है सबसे बड़ी चीज़, सुकून है। जब सुकून जो है जब अल्लाह की तरफ से है, क्यों नहीं दौड़ते हम उसकी तरफ? क्यों उसको सबसे लास्ट में रखते हैं? क्यों जब वो बोल रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको कम्फ़र्ट दूँगा, मैं तुमको सुकून दूँगा, तो क्यों हम उसको सबसे लास्ट में रखते हैं?
अभी यहाँ पर कोई लड़की है या लड़का है या दोस्त है, या मान लीजिए आजकल जितना भी रिलेशनशिप चल रहे हैं, तो इंसान दौड़ के भागता है। अगर फोन भी आता है तो बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ जाएगा, आप दौड़ के लपक के भागोगे। ठीक है, जिसने मुझे बनाया है, जो जो हर एक चीज, मतलब उसको तो ये भी पता है कि मेरी कौन सी रग कहाँ से जा रही है। उसको ये भी पता है कि मेरे एक आंसू का भारीपन कितना है। तो मैं क्यों ना जाऊं उसके पास सुकून तलाश करने। हम लोग नहीं जाते। हमें जिंदगी को आसान मुझे कैसे बनाना है, अल्लाह की चीजें मान के, कुरान पढ़ के, और ये जो आयतें हैं, आइंदा से कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है या कोई भी हार्डशिप आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम इन चीजों पे गौर करेंगे और इन आयतों को खुद को रिमाइंड कराएंगे। कुछ भी हो रहा है, देवरानी जिठानी की लड़ाई होती है घर में, बहुत सारे मसले होते हैं, बहुत सारे, स्कूल से किसी बच्चे को निकाल दिया गया है, जॉब छूट गई, मेरा अल्लाह जानता है। और मेरे अल्लाह ने ये भी कहा है कि मुझे दुखी नहीं होना है। मेरे अल्लाह ने ये कहा है कि मैं प्रोवाइड करूंगा तुमको, जैसे उसने मरियम अलैहिस्सलाम के लिए किया कि उन्होंने उन्होंने कम्युनिटी छोड़ दी। मेरे अल्लाह ने फरिश्तों से जन्नत से फल भिजवाए, जन्नत से फल, वो ऐसी जगह से भिजवाएगा। जब मेरे अल्लाह ने वादा किया है तो मुझे है ही नहीं जरूरत। हाँ, लेकिन कोशिश आपके हाथ में, कोशिश आप नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि अब इससे लोग बहुत ज्यादा वो कर लेते हैं ना, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं कि अल्लाह ने बोल दिया है तो आ जाएगा। नहीं, कोशिश आपके हाथ में, कोशिश आपको करते रहनी है। बस कोशिश आप कर सकते हैं, बाकी जो जो प्रोवाइड कराने वाला काम है वो अल्लाह का है, वो सिर्फ मेरा खुदा कराएगा आपको इंशाल्लाह। युसरा, ईज, है ना। आज इसी की तो बात हो रही है कि आसानी कैसे करें। तो सबसे पहले ये जो आयतें थी, इससे क्या होगा ना कि आप आसानी की तरफ जाएंगे। क्या होगा कि जो भी आपके अंदर परेशानी आ रही होगी ना, तो क्या होगा ना, एक दिल को एक तसल्ली मिल जाएगी कि नहीं, मेरा रब है ना। इन आयतों से क्या होगा कि मेरा रब है, मेरा रब क्या करेगा, युसरा, युसरा का मतलब क्या होता है, आसान कर देगा चीजें, है ना, इंशाल्लाह। और वो करता है चीजें, वो बहुत आसान कर देता है चीजें। मैंने तो अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह इतने मौजज़े देखे हैं कि अब अगर कोई मुझे बोल दे कि पुरानी वाली अदीबा बन जाओ और कितना ही पैसा ले लो, तो मैं कभी ना बन पाऊँ इंशाल्लाह। अब इसके बाद क्या है, यसीरन, यसीरन जो है यहाँ पर ज्यादातर कुरान में दो वर्ड यूज होते हैं, यसीरन और हय्यन। यसीरन का मतलब क्या होता है, अ टास्क डन विदाउट एनी डिफिकल्टी। अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, यानी कि कोई ऐसा काम जो कि मतलब आपको डिफिकल्टी हुई ही नहीं है और आपने वो कर दिया, है ना। और युसरा का मतलब क्या था, आसानी। और हय्यन का मतलब क्या है कि अ टास्क दैट गिवन इज वे बीनीथ योर स्किल। इसको मैं अभी समझा देती हूँ अच्छे से। हय्यन क्या हुआ, मैं कहूंगी 1+1 क्या होता है, तो कोई भी बोल देगा 2। तो ये हय्यन था मेरे लिए। क्या था, हय्यन। हय्यन का मतलब ये होता है कि मुझे मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, ये तो मेरा लेवल है ही नहीं, आपने कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। ये होता है हय्यन। अब फिर क्या होता है, यसीरन। यसीरन का मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे पूछ लूं कि 12 into 6 कितना होता है, या 12 into 16 कितना होता है, तो आप उसको, परेशानी नहीं होगी आपको उसे करने में, यू कैन डू इट। लेकिन हाँ, डिफिकल्टी किस में हो जाएगी, जब मैं आपसे पूरी जियोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पूछ लूं, है ना, उसमें डिफिकल्टी है। तो यसीरन का मतलब क्या हुआ कि आप कोई काम कर सकते हो, आप उसमें फंसोगे नहीं। और हय्यन का मतलब क्या होता है कि वो तो मतलब आपके लेवल से नीचे वाली चीज है। तो ये दो वर्ड बहुत ज्यादा यूज हुए हैं। और युसरा, युसरा का मतलब सब जानते हैं ना, इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, लेकिन वो चीज मैंने सबसे लास्ट में रखी है। उससे पहले मैं एक और आयत उठाऊंगी इंशाल्लाह। और इस आयत को सुन के अगर आपका दिल ना हिल जाए तो देखिए बताइएगा इंशाल्लाह। सूर्य अल-लैल की वर्स नंबर 7 है, फसानुयस्सिरु लिल युसरा। इसका मतलब है वी विल फैसिलिटेट फॉर देम द वे ऑफ ईज। वी अल्लाह के लिए आता है, ये रॉयल वी होता है ना। वी का मतलब हम नहीं है यहाँ पर, अल्लाह खुद को जब मैं बोलते हैं ना, तो वो वी यूज करते हैं, क्योंकि ये रॉयल वी होता है। जैसे राजा महाराजा खुद के लिए हम यूज करते हैं ना, ये वो वाला वी है। तो वी विल मेक ईज फॉर हिम, वी विल फैसिलिटेट, यानी कि जो कौन सा आसानी का रास्ता है, मैं उसको फैसिलिटेट कर दूंगा, मैं पहुंचा दूंगा। वी विल फैसिलिटेट फॉर हिम, वी विल मेक ईज फॉर हिम, मैं आसानी का रास्ता जो है उसके लिए
मैं उसके लिए उसके रास्ता आसान कर दूंगा। और यहाँ वी कौन है? यहाँ इट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला, है ना। और इसको अगर, इसी आयत को अगर दूसरी तरह से पढ़ा जाए तो क्या होगा? क्या क्या होगा पढ़ा जाए तो, कि वो आसान ना करे कुछ, अगर मतलब वो ना चाहे तो कुछ भी आसान नहीं है। अगर इस आयत का अगर हम उल्टा देखें तो क्या है कि अगर वो ना चाहे तो कुछ भी आसान नहीं है, और अगर वो फैसिलिटेट ना करे तो हर चीज डिफिकल्ट है। तो यानी कि अब हर डिफिकल्टी भी जो है वो किसकी तरफ से? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। बीमारी का टॉपिक उठा था तो बीमारी किसकी तरफ से? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। अब यहाँ डिफिकल्टी भी यानी कि परेशानी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से है। तो जिसकी तरफ से, जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसको ज्यादा अच्छे से आंसर पता होगा ना। तो जब कोई परेशानी आई है तो कहाँ दौड़ना है? उस टीचर के पास दौड़ना है जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया होगा। तो कहाँ जाना है? जाके कर लो सजदे। और जो आसान है उसको आसान बना देता है। ठीक है, जब आप अच्छे काम करते हैं, ठीक है, या सोचते हैं अच्छा काम करने की, तो उस बंदे के लिए अल्लाह का पता है क्या तोहफा होता है? जब आप कोई अच्छा काम करते हैं या सोचते हैं तो अल्लाह आपके लिए उस काम को आसान कर देता है। मैं अपनी बहन का यहाँ पर शायद अभी वो होगी, मैं बताती हूँ। मैं पता है ये वाली चीजें, मैं रियल लाइफ वाली चीजें क्यों बताती हूँ, इनसे ना, ये ऐसा नहीं है कि सहाबा के तौर पर है, क्योंकि उन पे क्या होता है ना, जो इंसान के सामने होता है उस पर ज्यादा यकीन करता है। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझ पर यकीन कीजिए, लेकिन जो होती हैं चीजें उस वो है ना कि हर अक्लमंद के लिए निशानियां हैं। मेरी बहन है सबसे छोटी, वो चिड़ियों को खाना खिलाती है, उसकी आदत है। और फिर कुछ टाइम के बाद एक वहां पर लंगड़ी चिड़िया आती है, और वो रोज आती है, वो सुबह भी खाना डालती है, शाम को भी खाना डालती है। ठीक है, ये मतलब मेरे घर में उसी की आदत है, वही ये काम करती है, पानी भी है और खाना भी डालती है। तो अभी उसको ईदी पर पैसे मिले थे, तो उसने सोचा था कि इतने पैसों का पिज्जा खाऊंगी, ये करूंगी, और जो मेरे पास 10 या 5 रुपए बचेंगे, उसके लिए मैं क्या करूंगी कि मैं चिड़ियों को खाना खिलाऊंगी। ठीक है, उसने ये सोचा। और फिर उसने अपना बैग चेक कर रही थी, नेक्स्ट डे शायद उसको कॉलेज जाना था, एंड शी फाउंड क्या 50 रुपीज इन हर बैग। यानी कि अब आप ये देखिए, लेकिन वो अब अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं इतना खुश हूँ उसके लिए कि उसका विजन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अभी से ही ऐसे कर दिया है। मतलब शायद हम में से कोई हो तो वो समझ नहीं पाता, वो इतना ज्यादा फॉलो करती है यहाँ पर ये चीजें, कोई भी कुछ होता है तो पूछने लग जाती है क्या होती है। उसने कहा कि बाजी आप देख रही हैं कि मैंने तो सिर्फ सोचा था कि मैं 5 रुपए का या 10 रुपए का खिलाऊंगी, और अल्लाह ने मुझे 50 रुपए दे दिए। मैंने तो सिर्फ सोचा था अच्छा काम करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब शी इज सो यंग ना अभी, और उसका दिमाग देखो, ये है ना अक्लमंदों के लिए आसानियां हैं, तो उसने इस तरीके से उस चीज को रिलेट किया कि मैंने तो सिर्फ सोचा ही था कि मैं अच्छा काम करूंगी। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं ना, तो अल्लाह उसको आसान कर देता है आपके लिए। तो व्हाट आई सजेस्टेड कि अब जो है आप क्या करेंगी, अब उसमें से जो आपको अल्लाह ने 50 रुपीज दिए हैं, उसमें से और किसी उसको खिलाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ आपके नहीं है ना। उसमें नियत कर लीजिए। तो ये जो चीज है ना, ये फसानुयस्सिरुहु लिल युसरा एंड वी विल फैसिलिटेट फॉर देम द वे ऑफ ईज। यानी कि जब आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो क्या होता है कि अल्लाह उसको खुद ब खुद आसान कर देता है। जब आप कोई नेक काम करने जा रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह का अजाब क्या होता है? अल्लाह का अजाब पता है क्या होता है? जैसे हम लोग के साथ बुरा काम हमको इजी लगता है, और अच्छा काम क्या लगता है? टफ। ये अजाब है अल्लाह का, और वो गिफ्ट होता है अल्लाह का। तो हम लोग को ज्यादातर बुरे काम कैसे लगते हैं? इजी लगते हैं, अरे ये कर लो, ये कर लो। ठीक है, इंसान खुद ही हिचकिचाता है जब इतना अल्लाह से जुड़ चुका होता है ना, तो खुद ही हिचकिचाने लगता है कि नहीं, ये काम नहीं करना है ना। ये यसीरन और हय्यन के बारे में तो मैंने बता ही दिया। कुछ लोगों को नमाजें बहुत ज्यादा मुश्किल लगती हैं, हालांकि नमाज कितनी अच्छी चीज है। मतलब इंसान को क्या होता है ना, 1 घंटे के लिए आप थेरेपिस्ट के पास चले जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएंगे, लेकिन नमाज क्या होता है ना, उनको हाइपर वेंटिलेशन होने लगता है कि नमाज पढ़ रही हूँ, बांध के खड़ी हूँ, बस जल्दी से भागो, जल्दी से निकलो यहाँ से। ठीक है, थोड़ी देर ठहर ही नहीं पाते हैं उस चीज में। तो जब वो उस चीज को आसान नहीं समझते हैं ना, नमाज को टफ पढ़ते हैं, तो अल्लाह ने ये भी कहा है कि जब इसका उसका उल्टा क्या है
کہ जब वो फैसिलिटेट कर देगा, अल्लाह ने ये भी कहा है कि वो क्या कर देगा, वो चीज़ों को तुम्हारे लिए हार्ड भी कर देगा। बुरे काम को जो है, और ये भी कहा है कि बुरे काम को वो आसान कर देगा। बुरे काम को भी वो आसान कर देगा। कैसे बुरे काम को वो आसान कर देगा? जब आप नहीं मानेंगे ना और आप अपनी हट पकड़े रहेंगे। तो अल्लाह ने कहा है कि मैं उनके लिए जो हेल पाए, यानी कि जहन्नम का रास्ता आसान कर दूँगा। ये इसी जो सूरह अल-लैल की है, इसी की आयतें हैं, आगे, 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 आगे। बहुत सारी आयतें थी, लेकिन मैंने सिर्फ़ ये ली क्योंकि आज का जो पूरा जुज़ है वो इसी में, इसी आयत में है। तो अल्लाह ने ये भी कहा है कि मैं उनके लिए आसान कर दूँगा क्या? जहन्नम का रास्ता। अब देखिए, जहन्नम का रास्ता आसान है और जो जो जन्नत का रास्ता है वो मुश्किल है। लेकिन अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अच्छे काम को अल्लाह आसान कर देगा, और आपकी नीयत नहीं है सही तो अल्लाह उसको भी आसान कर देगा। अल्लाह कहता है कि जाओ, छोड़ दिया मैंने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की हर चीज़ मुश्किल लगी सिवाय नमाज़ के। और जो वो इसीलिए वो इतनी नमाज़ पढ़ते थे क्योंकि उनको क्या था, उसमें ईज़ लगता था, उनको आसान लगती थी वो चीज़। आँखों की ठंडक बोलते थे वो नमाज़ को, ठीक है? कम्फ़र्ट उनको मिलता था, एस्केप था, दुनिया से बचने का तरीका था, ठीक है? हर उसमें इसीलिए उनको क्या, नमाज़ सबसे ईज़ी चीज़ लगती थी, है ना? तो ये आयत आई कि मैं आसान चीज़ को आसान कर दूँगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसान चीज़ क्या थी? नमाज़ थी। और उनको आसानियत थी नमाज़ में, वो बहुत नमाज़ें पढ़ा करते थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको भी इस चीज़ की हिदायत दे। और अल्लाह जो है ना, अब ये जो फसनुयस्सिरू, ये जो आयत थी ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। ये जो आयत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी थी। लेकिन एक हदीस से ये साबित है कि फसा सनुयस्सिरू लिल युसरा, यानी कि 2 बार सा आया है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोला फसनुयस्सिरू लिल युसरा, कि मैं तुम्हारे लिए आसान रास्ता कर दूँगा। लेकिन जब मेरे अल्लाह ने क्या किया, जब मुझसे वादा किया, मुझ जैसे लोगों से वादा किया, तो क्या बोला? सनुयस्सिरुका, नुयस्सिरु लिल युसरा। ये जो यहाँ एक्स्ट्रा सा लगा है ना, फसा सा, तो ये सा पता है किस लिए लगा है? यहाँ पर सा लगा है सून, जल्दी के लिए। सोचिए, उसने अपने महबूब से नहीं कहा कि मैं तुम्हारे लिए जल्द आसानी भेजूंगा, लेकिन उसने मुझ जैसों के लिए, उसने मेरे नबी की उम्मत से कहा कि मैं तुम्हारे लिए जल्द चीजें आसान कर दूंगा। ये चीज कैसी है कि मतलब उसने अपने महबूब से नहीं कहा। क्यों पता है ये चीज क्यों? क्योंकि इंसान ना हमेशा बहुत जल्दी में रहता है, हमेशा इतनी ज्यादा जल्दी में रहता है, जल्दी से सारी चीजें हो जाए, जल्दी से जो दुआ मांगी है वो कबूल हो जाए, जल्दी से सारी चीजें हो जाए, ठीक है? वो खुद वादा करता है आसान करने का। तो क्या चीज है कि मतलब ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, क्या चीजें होती हैं ये जो वो खुद बोल रहा है कि मैं आसान और जल्द ही आसान करूंगा? तो तब तो मुझे नहीं लगता कि कोई परेशान करने वाली चीज़ भी होनी चाहिए हमको। तो हमारे लिए अल्लाह ने क्यों लिखा कि मैं जल्द ही कर दूँगा? क्यों लिखा अल्लाह ने जल्द ही कर दूँगा? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बहुत कंटेंट थी। वो जानते हैं अपने रब को, वो जानते थे अपने रब को, वो मुतमईन थे, वो अनरेस्ट नहीं थे, वो बेचैन नहीं थे हमारी तरह, है ना? जो हम इंसान लोगों में होती है ना, वो होती है, रेस्टलेसनेस होती है, कि बेचैनी होती है। तो जब आप बोलते हैं कि जल्द, तो आप क्यों बोलते हैं? ताकि इंसान काम डाउन हो जाए। हम लोग को हमारी बेचैनी को दूर करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वहाँ पर एक एक्स्ट्रा सीन लगाया। क्योंकि क्या होता है, कहीं आप किसी का वेट कर रहे होते हैं और कोई इंसान ट्रैफिक में फँस जाता है, तो वो बोलते हैं ना, हाँ, हाँ, बस आ गया, जल्दी आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ। तो ये जो सून है ना, अल्लाह ने हमारे लिए यूज़ किया, अपने नबी के लिए यूज़ नहीं किया। तो हमारा रिलेशनशिप अल्लाह से इतना अच्छा नहीं है कि मतलब हम रश में रहते हैं। हम क्या है, हमें जल्दी चीज़ें चाहिए क्योंकि हमें यकीन ही नहीं है उसके ऊपर। हमको यकीन नहीं है। अगर 3 दिन भी मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, चौथे दिन से मैं माँगना छोड़ दूँगी कि नहीं, ये तो नहीं हो रही है मेरे लिए कबूल, है ना? अब इंशाल्लाह, जैसे कि ये जो नुयस्सिरु निकला है ना, सा नुयस्सिरु जो निकला है, ये वर्ड के बारे में
आपकी थोड़ी-सी हिस्ट्री मैं बता देती हूँ कि पहले जब घोड़े पर राइड करना चाहते थे ना, राइड करना इम्पॉसिबल होता था बेसिकली, क्योंकि लोग गिर जाते थे या चोट लग जाती थी। तो जब ज़ील थी ना, जो हुक होता है जिस पे बैठने वाला, जब वो बना ना, तो वो घोड़ा राइडेबल हो गया। यानी कि उस घोड़े पर आसानी से राइड की जा सकती थी। तो लोग बोलते थे अरब में, बेसिकली अरेबिक तो वर्ड है ही, तो सान-यस्सिर बोलते थे कि मतलब अब ये ईज़ी हो गया, अब ये आसान हो गया, तो ये वर्ड वहाँ से बेसिकली उठा है। ठीक। अब इंशाल्लाह हमको क्या करना है, सबसे पहले तो तवक्कुल करना है। कैसे ज़िंदगी को आसान बनाना है? तवक्कुल से, है ना? तवक्कुल से ज़िंदगी को आसान बनाना है। तवक्कुल क्या हुआ? तवक्कुल हुआ अल्लाह पर यकीन, जो कि हमको नहीं होता है। 5 दिन मैं कोई दुआ माँगती हूँ और छठे दिन मैं छोड़ देती हूँ कि नहीं, ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है, मेबी ये मेरे हक में नहीं हो अच्छी। दुआओं से तो किस्मत बदलती है ना, आप माँगिए, मेरा अल्लाह कर देगा, ठीक है? और अगर वो नहीं भी लिखी होगी तो उसको बेहतर करके आपके नसीब में डाल देगा। उसके पास तो ताकत है ना इतनी, वो तो कर सकता है ना। और क्या यहाँ पर तवक्कुल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सूरह अत-तलाक की तीसरी आयत में, और उसको वहाँ से रिज़्क दूँगा, देगा, है ना? जहाँ से उसने तसव्वुर भी नहीं किया होगा, वहाँ से रिज़्क दूँ, मतलब तो आप सोच ही नहीं सकते। मैं सोच रही हूँ कि सामने एक दीवार है, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी आँखें खोलेंगे और यहाँ क्या दरवाज़ा बन जाएगा। यकीन है। बेशक अल्लाह अपना मकसद पूरा करेगा। और ये कौन-सी बात आ गई कि आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए। तो ये अल्लाह ने फिर से बोला, बेशक अल्लाह अपना मकसद पूरा करेगा। और ये मरियम अलैहिस्सलाम के टाइम पर भी ये वाली बात आई है। तो कितनी बार मेरा अल्लाह बोल रहा है ना कि हाँ, मैं करूँगा, मैं करूँगा, मैं करूँगा। जब वो बोल रहा है, वो आसानी की बात खुद कर रहा है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी आसान करूँगा। क्यों नहीं हम लोग उसके ऊपर यकीन करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं, जब परेशानी आती है तो कुरान लेकर बैठते हैं और अपने दिल को जो है तसल्ली देते हैं अल्लाह की इन बातों से। अल्लाह ही है हर चीज़ के लिए एक हद वक़्त मुकर्रर कर रखा है, लेकिन पता है टाइमिंग, बोलते हैं ना कि अल्लाह को सब पता है, टाइम से ये चीज़ होगी। अब छोटा-सा बस एक किस्सा और बता देती हूँ। क्या हुआ था ना, जब मैं यहाँ पर आने वाली थी, मेरी जॉब जो है वो चली गई थी। जनवरी में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी, फरवरी में मैंने यहाँ आकर इंटरव्यू दिया था। मैं हमेशा अपने बारे में बताती रहती हूँ। वो इसलिए ताकि आप लोग थोड़ा ना इन्फ्लुएंस हो जाए। बस मैं ये चाहती हूँ कि आपका ना यकीन बढ़ जाए। भले से मेरी बात से बढ़े, मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हुई हैं उस चीज़ से ही बढ़े, लेकिन बस आपको मेरे अल्लाह पर यकीन हो जाए। जिस जैसा मेरा यकीन है ना, मैं चाहती हूँ उससे भी ज़्यादा यकीन हो जाए। तो जब मेरी मेरी ना जनवरी में जॉब छूट गई थी, तो मुझे कॉलेज आना आना पड़ रहा था कि मैं 9 टू 4 कॉलेज करूँगी या जॉब करूँगी। तो मैंने जॉब छोड़ दी जनवरी में। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मतलब ना तो मैं रेंट दे सकती थी, ना मैं खाना कर सकती थी, कुछ कुछ भी नहीं कर सकती थी। ठीक है? फिर मैंने फरवरी में यहाँ का इंटरव्यू दिया कि ठीक है, वार्डनशिप के लिए मैं डाल देती हूँ। वार्डनशिप के लिए मैं यहीं मेरी यूनिवर्सिटी में था ये। तो पता है कुछ हुआ ही नहीं, मार्च निकल गया और इतनी सेविंग्स मेरे पास थी कि मैं फरवरी, मार्च कर रही थी। तो फिर पता है, मैं जब घर से आई, होली के बाद लौटी घर से, तो मैंने ना, और जब मैंने तहज्जुद पढ़ना स्टार्ट की ना, आप यकीन मानिएगा 1 हफ्ता मैं सोई नहीं हूँ, मैं सोती ही नहीं थी। बस मुझे लगता था कि मैं सजदे में पड़ी रहूँ, ठीक? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैं अल्लाह से ये दुआ माँगती थी कि अल्लाह मेरी पहली सहरी जो है यहाँ हॉस्टल में करा देना। मैं चाहती हूँ कि बस ये, क्योंकि आप जानते हैं मुझे इस चीज़ की कितनी ज़रूरत है, क्योंकि वो तो जानता है ना कि मुझे किसी चीज़ की कितनी ज़रूरत है ना। तो मैं बोलती थी, अल्लाह आपको पता है कि मुझे ज़रूरत है, और वो चीज़ बेहतर है, अभी इस टाइम पर मुझे बेहतर लगती है और मैं ये नहीं जानती कि बेहतर है या नहीं है। ठीक है। लेकिन उसके अलावा मैं क्या कर रही थी कि रूम भी ढूँढ रही थी, दूसरी जगह मुझको शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि मैं रमज़ान में डेली अप डाउन नहीं कर सकती थी। तो उसमें क्या है ना कि मैं कोशिश भी कर रही हूँ, मुझे अल्लाह पे यकीन तो है, लेकिन मैं दूसरी जगह भी, क्योंकि अगर वो चीज़ मेरे लिए बेहतर है तो वो दुआ कबूल नहीं होगी। तो मैं दूसरी जगह भी तो देखूँ ना अपना। लेकिन फिर जब मैं वहाँ गई तो मुझे रूम नहीं मिला। फिर मैं दूसरी जगह गई तो मुझे रूम नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मेरा अल्लाह प्लान कर रहा था। और पता है, जब जिस दिन चाँद रात थी ना, चाँद रात वाले दिन भी, मतलब तब तो 1 ही दिन बचा था ना सिर्फ़ रमज़ान आने में। तो मैंने उस दिन भी दुआ की। मैंने कहा, अल्लाह अब तो दिन ख़त्म हो गए हैं और मैं फिर भी आपसे दुआ माँग रही हूँ कि मेरी पहली सहरी जो है वो करा देना। अगले ही दिन में 1 बजे कॉल आया यहाँ से और बोला कि हाँ ठीक है, आपके पेपर साइन हो गए हैं, आप आकर पेपर वर्क कर लीजिएगा। और फिर आपको वार्डनशिप मिल गई। 1 दिन पहले, किस दिन? चाँद रात वाले दिन। और जब मैंने शाम तक, मग़रिब तक, जब चाँद दिखने वाला था, यहाँ पर शिफ्ट कर लिया,
और जब मैं पहली सहरी मैंने यहाँ हॉस्टल में की, तो पता है मैं अपनी पिछली तहज्जुद याद कर रही थी कि अल्लाह कल ही तो मैं तहज्जुद पढ़ रही थी ना। तो यूँ मतलब आपको ना छोड़ना नहीं है उसको। मेरी ज़िंदगी में परेशानी है, मेरा रब जानता है ना वो चीज़। उसको नहीं छोड़ना है, पता है? जब आप उस पर यकीन करेंगे ना तो चीज़ें ऐसी होंगी। ये मेरी ज़िंदगी की कुछ-कुछ चीज़ें हैं, मुबीन अपी हैं देखो, उनको अल्लाह अल्लाह ने औलाद से नवाज़ा है। तो पता है जब लेकिन इस चीज़ का वेट मत कीजिए कि मेरे साथ कुछ होगा तो मेरा यकीन पुख्ता होगा, नहीं, आपका यकीन पुख्ता होगा तो अल्लाह मौज़े करेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, पता है? आपका यकीन पुख्ता होगा तो अल्लाह मौज़े करेगा। ये नहीं कि मुआज़ा हो जाए, एक साइन मिल जाए। अरे द दे कयामत के दिन तो देखकर तो सबने ले आना है ना ईमान अल्लाह को। जो गैब पर ईमान लाए वो मोमिन है। कयामत के दिन तो सब देख ही लेंगे अल्लाह को, और जब अल्लाह को देख लिया उस दिन तो सबने ईमान ले ही आना है। देखकर किसी चीज़ को क्या करना है कि नहीं पहले प्रूव करो तब उसके बाद, नहीं, ट्रस्ट क्या होता है? बिलीव किसे बोलते हैं? मैं कहती हूँ ना मेरी बात पर बिलीव करो। बिलीव का मतलब क्या होता है कि आप उस बात को नहीं जानते हो लेकिन मेरी मान रहे हो। तो वी कॉल्ड बिलीवर्स। हम क्या बोलते हैं? हम बिलीवर्स बोले जाते हैं क्योंकि हमें गैब पर ईमान लेकर आना है ना? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अल्लाह की जो टाइमिंग है, क्योंकि वो 2 दिन पहले नहीं होना था, 1 दिन पहले नहीं होना था, 4 दिन पहले नहीं होना था, उसी दिन वो होना था। तो ये टाइमिंग यहाँ जो अल्लाह ने ये अब पता है, अब ये जब मैं पढ़ रही थी ये वाली आयत, तो ये था ना कि जो अल्लाह की टाइमिंग है, हर चीज़ के लिए एक हद वक़्त मुकर्रर कर रखा है उसने। तो एक वक़्त मुकर्रर है, वो चीज़ 2 दिन पहले नहीं है, वो दिन उसी दिन होनी थी क्योंकि। इसीलिए मैं इतना परेशान थी 2 महीने से। तो 2 महीने पहले उन्हें लिखी नहीं थी। वो सही वक़्त, वो जानता है कि क्या नीड है और किस टाइम है और किस टाइम अता होगी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद क्या है? तक़वा। तक़वा तक़वा मतलब अल्लाह का डर, है ना? हम बहुत बोलते हैं अल्लाह मेहरबान है, रहम वाला है, ये वो, लेकिन अल्लाह ने यहाँ ये किसकी आयत है यहाँ पर? ये सूरह तलाक की ही आयत है, आयत नंबर 4। इसमें क्या लिखा है कि एंड हूएवर फियर्स अल्लाह ही विल मेक फॉर हिम ऑफ हिज मैटर ईज, यानी कि जो अल्लाह से डरते हैं ना उनके लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करते हैं? आसानी फरमाते हैं। किसके लिए? जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए आसानी, जो अल्लाह पर यकीन करते हैं उनके लिए आसानी, ठीक है? और उसके अलावा जो कुरान पढ़ेंगे उनके लिए आसानी ना। तो कुरान पढ़ के तो पहले तो मुझे तसल्ली दे ही दी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, इतनी सारी जो मैंने आयतें बताई मुझे तसल्ली मिल गई कि हाँ, मेरा रब जानता है। उसके अलावा जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो क्या हुआ? उन अपना जो है स्टेटस एलिवेट करें, अपने रब के साथ ना कनेक्ट हो जाएँ बिल्कुल से, कि अगर दिन में आज क्या हुआ, कील भी चुभी है ना, तो मैं रात को आकर या अल्लाह आज मुझको कील चुभ गई थी। दिस इज़ हाउ यू टॉक विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, है ना? और एक चीज़ और थी ना जो मुझको बतानी थी, ये भी बहुत बहुत ये ना बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं 5 मिनट ज़्यादा लूँगी मुबीन नब्बी, क्योंकि चीज़ें बहुत है बताने के लिए, क्योंकि पता नहीं किसकी ज़िंदगी में कौन-सी चीज़ है वो कहाँ हिट कर जाए। हम क्या करते हैं ना, हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मास्टर बोलते हैं ना, ही इज़ माय मास्टर, ही इज़ माय लॉर्ड, लेकिन जब हम वो मास्टर वर्ड सुनते हैं ना, तो आप जब मास्टर सुनेंगे या टीचर सुनेंगे तो हम को क्या लगता है ना कि थोड़ा ना स्ट्रिक्ट वाला वो आता है हमारे पास कि स्ट्रिक्ट होंगे या फिर वैसे होंगे, क्या होंगे? स्ट्रिक्ट होंगे ना, या फिर डांटेंगे या डपटेंगे या क्या करेंगे, है ना? ये होगा। लेकिन उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अन-निसा, ये जब मैं लिख रही थी ये तभी की बात है। मेरी फ्रेंड सूरह अन-निसा की एक आयत पढ़ रही थी, तो उसने बोला कि देखो ये क्या है? उसमें लिखा था सफिशिएंट फॉर यू अल्लाह एज़ एन एलाई, सूरह निसा की 45 आयत है, वो मैंने इसमें डाली नहीं है। अल्लाह, जब हम सुनते हैं ना दोस्त, तो हम जो सिन करते हैं ना, जो हम गुनाह करते हैं, तो अपने दोस्त को बता देते हैं कि यार आज मैंने ये कर दिया। हम उसके सामने कन्फेस कर देते हैं क्योंकि वो क्या कहता है कि कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, नेक्स्ट टाइम से नहीं करना। तो जब हम अल्लाह को मास्टर बोलते हैं ना, तो तकवा जब हम कर रहे हैं अल्लाह से, जब हम डर रहे हैं तो हमें उसे मास्टर सोचना है। लेकिन जब हम उस पर यकीन कर रहे हैं तो हमें उसे क्या सोचना है? एज़ एन एलाई, एज़ एन दोस्त सोचना है। तो ये सूरह निसा की आयत नंबर 45 है, सफिशिएंट फॉर यू अल्लाह एज़ एन एलाई एंड एज़ एन हेल्पर, यानी कि अल्लाह काफ़ी है तुम्हें दोस्त और तुम्हारा मददगार, यानी कि दोस्त की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब आप दिन में आपने कुछ काम किया ऐसा जो कि क्या अनलॉफुल था, जो कि कैसा था?
کہ اسلام کے اس سے جائز نہیں ہے، یا کسی کا دل دکھایا یا ایک گالی دے دی، آ کر کنفیس کرو اللہ کے سامنے، بولو کہ اللہ آج میں نے یہ غلطی کر دی ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، دوستوں کو کال لگاتے ہیں، یار یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، ایسا کر دیا ہے نا. اس میں بھی دوست کی ضرورت نہیں ہے. دوست ہیں ابو بکر صدیق جیسے دوست رکھیے آپ، ہے نا، جو میں نے پہلے بھی اس بیان سے پہلے بتایا تھا. لیکن جب آپ دوست ورڈ آتا ہے نا اللہ کا، جب دوست آتا ہے تو اس سے راحت ملتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یقین ہوتا ہے. کیونکہ جتنا یقین ایک دوست پر ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کوئی انسان اپنے شاید ماں باپ پر بھی نہیں کرتا ہوگا. کیونکہ ہم ماں باپ تو کان پکڑ کے ماریں گے، ہے نا. تو یقین جو ہے وہ، جب اللہ نے وہ والی آیت بھی تو دی ہے کہ ٹھیک ہے میں ماسٹر ہوں، میرا نام جلال ہے، لیکن میں دوست بھی ہوں تمہارا، میں تمہارا مددگار بھی ہوں. اگر تم کسی چیز میں پھنس گئے ہو تو پکارو مجھے، میں مدد کروں گا. بولتے ہیں نا دوست، ارے تو کر لے، ہم لوگ میں سنبھال لوں گا. اللہ تو بول رہا ہے کہ میں مددگار ہوں، sufficient for you اللہ ایز این ally and ایز اے helper. یہ آیت اس کے لیے نہیں تھی، وہ بس اچانک سے پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں نا معجزے. یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے نا کہ میں یہ والا پریپیئر کر رہی تھی اور اچانک سے مجھے میری دوست نے بولا کہ دیکھو یہ والی آیت پڑھو. اور اس کو سن کر جو سکون ملتا ہے نا کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا دوست بھی ہے نا. سبحان اللہ. تو جب آسان آسان کون کرتے تھے، دوست ہوتے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. تو میرا اللہ تو دوست بھی بننے کے لیے تیار ہے، میرا اللہ تو مدد بھی کرنے کے لیے تیار ہے. تو آپ کیوں نہیں جاتے اس کے پاس؟ ہم کیوں نہیں جاتے؟ کبھی کبھی میں بھی بہت زیادہ ویسے کر دیتی ہوں نا، تو مجھے لگتا ہے کہ کیوں میں لوگوں کو بولتی ہوں. میں ایسا نہیں میں پرفیکٹ ہوں یا میری زندگی بہت اچھی ہے یا کچھ بھی ہے، لیکن کبھی کبھی میں بھی ڈھیل چھوڑ دیتی ہوں نا. تو کیوں ہم ایسا کر دیتے ہیں؟ کیوں نہیں جاتے ہیں اس کے پاس؟ وہ میرا دوست ہے نا. کیوں مجھے کوئی اور دوست چاہیے؟ مجھے نہیں چاہیے کوئی اور دوست. کیونکہ کل کو وہ دوست دشمن بھی بن سکتا ہے، لیکن میرا اللہ کبھی دشمن نہیں بنے گا. کیونکہ دشمنائی کی شیطان کی چیز ہے، اور میں تو میرے رب کو پوچھتی ہوں نا، میں تو میرے رب کی عبادت کرتی ہوں نا. سبحان اللہ. اب جو یہ ہے نا کہ کس طرح سے اللہ آپ کی چیزیں کیا کریں گے، آپ کو اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا ٹرسٹ توکل ہونا چاہیے اللہ کو. دوسرا ریپیٹیشن. ریپیٹیشن یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی چیز کو کرنے کے لیے نا آپ کو ڈیلی بیسس کرنا ہے کوئی چیز. وہی ہے نا، جیسے میں دعا بول رہی تھی کہ آپ دعا مانگیں گے، ویسے اس کے لیے میں نے الگ اگزامپل رکھا تھا. وہ ابھی ٹائم نہیں ہے تو میں نہیں بتاؤں گی، کیونکہ اس کے آگے ایک اور سلائیڈ بھی ہے، وہ مجھے ایکسپلین کر دی ہے اچھے سے. تو کیا ہے ریپیٹیشن؟ کوئی چیز ڈیلی بیسس پہ دعا مانگ رہے تو ڈیلی مانگے اپنے لیے، لیکن وہ کرے گا، وہ چیزیں کرے گا. وہ چیز آپ کے لیے نہیں ہے نا صحیح، وہ آپ کو صحیح وے میں کر کے دے گا. اور اپنا کنیکشن صرف اللہ سے رکھیے، صرف اور صرف اللہ سے رکھیے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہیں زندگی کو آسان کرنے کی. اور پھر یہ والی آیت تو سب نے پڑھی ہی ہے. سو ویر آئی لیو ود دا ہارڈ شپ دیر از اے ریلیف، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ بولتے ہیں کیا ڈیفیکلٹی کو، اور یسرا میں نے وہ ایک پوری سلائیڈ لگائی تھی، یسرا مین ایز. ٹھیک ہے، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اب کیا ہے ہیپی لائف؟ ہیپی لائف جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے ہم لوگ دیکھیں گے. ہیپی لائف میں کیا ہوگا کہ ہم لوگ کو خوش رہنا ہے. سب سے پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ ایک سسٹر تھی جنہوں نے رمضان میں، مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے قرآنک مائنڈ ورسز کیسا مائنڈ بتایا تھا، نارمل مائنڈ، دنیاوی مائنڈ بتایا تھا اس کے اندر، کہ قرآن کیا بولتا ہے. قرآن میں کبھی بھی نا خوش رہنے والا نہیں آیا ہے نا. قرآن میں اللہ نے ترجیح نہیں دی ہے. خوش رہنے والا آیا ہوگا، لیکن اللہ نے نا خوش رہنے کو ترجیح نہیں دی ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہا ہے کہ آپ خوش رہو، میرا بندہ خوش رہے، جو تیرا دل کرے وہ کر، جس چیز سے تجھے خوشی ملے. لیکن آج کل کی جتنے بھی کوٹس آتے ہیں کہ ہاں، کہ until and unless if it is makes you happy، تو یہ جو ہے یہ چیز صحیح ہے. نہیں، قرآن میں کبھی بھی اللہ نے نہیں بولا. کیونکہ خوشی انہی سسٹرز کا مجھے یاد ہے انہوں نے بولا تھا کہ خوشی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ ایک ہفتہ کام کرتے ہو، سنڈے میں آپ کچھ کام نہیں کرتے ہو تو آپ کو مل جائے. کچھ نہ کرنے سے بھی خوشی ملتی ہے انسان کو. یعنی کہ وہ اتنی چھوٹی چیز ہے، اتنی چھوٹی چیز ہے خوشی، لیکن ہم لوگ کس کے پیچھے؟ خوشی کے پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن جو قرآن بولتا ہے وہ بولتا ہے مطمئن، سیٹسفائیڈ ہونے کے لیے، کہ آج جو میں نے کیا میں اس چیز سے سیٹسفائیڈ ہوں، خوش ہوں. الگ چیز ہے. میں گئی تھی کلب،
ठीक है? तो मैं वहाँ पर खुश होकर आ गई, पर क्या मैं सैटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से? हाँ, मैं गई थी सिनेमा हॉल मूवी देखने, तो क्या मैं उस चीज़ से, ठीक है मैं खुश हो गई, थोड़ी दिन देर के लिए खुश हो गई, क्या मैं उस चीज़ से सैटिस्फाइड हूँ? क्या जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है जो है, खुशी ठीक है, अच्छी चीज़ है, खुश इंसान को रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश ही रहना छोड़ दें, रहना चाहिए इंसान को। तो क्या कुरान मुतमईन होना सिखाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जो करते हैं, कुछ लोग खुशी में पता नहीं क्या-क्या कर लेते हैं और फिर उनके साथ पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हो जाती है ना? तो हैप्पी लाइफ, खुश रहना है। और ये एक बुक है बेसिकली, ये उससे नहीं लिया है मैंने कुरान से, ये खुश खुश वाली लाइफ के क्या है, 3 प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है? 3 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? समथिंग टू डू, समथिंग टू लव एंड समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। यानी कि आपके पास कुछ करने के लिए होना चाहिए, कुछ मोहब्बत करने के लिए होना चाहिए और कुछ ऐसा होना चाहिए क्या करे आप ख्वाहिश करें, है ना? लुक फॉरवर्ड टू यानी कि आगे जाके हमको ये काम करना है। अगर मैं इसको इस्लामिक वे से बोलूँगी तो इसमें मैं हर जगह अल्लाह डाल सकती हूँ। समथिंग टू डू, अल्लाह की इबादत, समथिंग टू डू अल्लाह से, समथिंग टू लव, अल्लाह से मोहब्बत और समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू जन्नह, जन्नत में जाना है मुझे, अल्लाह से मिलना है मुझे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है मुझे। है ना? ये मेरी विशेज़ में आएँगे। तो हैप्पी लाइफ़ के लिए ये 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ये किसी नॉर्मल बुक का है, मुझे बुक का नाम नहीं याद है, मैं इंशाल्लाह आपको वो करके बताऊँगी। सीक्रेट्स टू हैप्पी लाइफ़ करके है या प्रिंसिपल्स टू हैप्पी लाइफ़। अगर मैं इस्लामिक वे से देखूँ तो मैं इसके अंदर यहाँ पर ये डाल सकती हूँ। लेकिन अगर दुनियावी चीज़ का मैं इससे एग्ज़ाम्पल लेती हूँ तो इसमें क्या होगा कि जैसे कुछ लोग क्या होते हैं ना, वो रिटायर्ड हो जाते हैं। फिर दे डोंट हैव एनीथिंग टू डू। उनके पास इसमें क्या है ना कि ये 3 प्रिंसिपल्स होने ज़रूरी हैं खुशी वाली ज़िंदगी के लिए। अगर इसमें से 2 भी होंगे ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कुछ लोग हैं, बहुत कमाया, रिटायर्ड हो गए, उसके बाद क्या हो गया, मतलब उनके पास कुछ करने के लिए नहीं है। यानी कि वो देख सकते हैं कि मेरा मेंशन है, मेरे पोते-पोती है, तो उनके पास देखने के लिए भी है, उनके पास प्यार करने के लिए फैमिली भी है, लेकिन कुछ करने के लिए नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बिज़नेस में वो हो गए, बिज़नेस में यानी कि उनके पास करने के लिए भी काम है, उनके पास आगे देखने के लिए भी इतना ज़्यादा उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया, बिज़नेस खड़ा कर लिया, वो भी है। लेकिन कहीं न कहीं उनकी फैमिली फॉल अपार्ट हो रही होती ठीक? तो क्या है, उनके पास समथिंग टू लव नहीं है। इन 3 प्रिंसिपल्स को फुलफिल करना ज़रूरी है और अगर इस्लामिक वे से देखूँ तो इस्लामिक वे से तीनों चीज़ें जो है फुलफिल हो जाती हैं। तो इसी तरीके से अगर तीसरे वाले को किस तरीके से छोड़ा जाए, जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं उनके पास काम भी है, लव भी है, लोग उनसे प्यार करते हैं, फेम होता है, लेकिन दे एंड अप क्या कमिटिंग सुसाइड इन अ होटल रूम, क्योंकि उनके पास लुक फॉरवर्ड करने के लिए होता ही नहीं। अब क्या करना है, फेम पा लिया, काम भी कर लिया, अब आगे क्या करना है? तो कोई भी 2 चीज़ है ना, वो फुलफिल नहीं, तीनों चीज़ें फुलफिल होंगी और जब मैं यहाँ अल्लाह को रखती हूँ तो हर चीज़, मुझे क्या करना है, मुझे इबादत करनी है, मुझे किससे मोहब्बत करनी है, मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत करनी है, उनके प्यार उनके उनके जितने भी काम हैं उनसे प्यार करना है, ठीक है? और समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू जन्नह, मीटिंग अल्लाह और उसके बाद मीटिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये तीनों चीज़ें फुलफिल हो गई तो दैट मीन्स मैं तो अपनी अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकती हूँ। लेकिन जो कमाने वाली और दुनिया वाली ज़िंदगी है उसमें पक्का 2 में से 3 में से सिर्फ 2 ही फुलफिल हो पाते हैं। तो अगर इस्लामिक वे से देखा जाए तो मतलब खुशी वाली लाइफ़ भी मैं जी ही रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर सिस्टर्स। ओपिन आपके? अ, अभी हो गया है, पूरा हो गया है। आई होप हाँ, सबको समझ आया होगा।